إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ. تجوید القرآن کے اس کورس میں آج ہمارا لیکچر نمبر 4 ہے. آج کے اس لیکچر میں ہم کنٹینیو کریں گے مخارج کو، جو کہ ہم نے شروع کیا تھا لیکچر نمبر 2 سے. اور جہاں تک مخارج کا تعلق ہے، مخارج کا مطلب ہوتا ہے منہ کے وہ حصے جہاں سے ہمارے پاس حروف کی ادائیگی ہوتی ہو. انگریزی میں ان کو ہم آرٹیکولیشن پوائنٹس بھی کہتے ہیں، دا آرٹیکولیشن پوائنٹس آف دا لیٹرز، کیونکہ ہمارے پاس جو الفابیٹس ہے عربک میں جن کو ہم حروف الہجا کہتے ہیں، وہ منہ کے کس حصے سے ادا ہوتے ہیں، کیسا ان کا ڈائلیکٹ ہے، اس کو ہم جانتے ہیں، اسی کو ہم مخارج کہتے ہیں. ابھی تک آپ نے یہ جانا کہ ہمارے پاس جو ہمارا منہ ہے، یعنی ہونٹوں سے لے کے گلے تک کا پورا حصہ اور ناک کا بانسا، اس میں سے ہمارے پاس 5 ایسے میجر آرٹیکولیشن پوائنٹس ہے یا مخارج کی قسمیں ہیں، جس میں سب سے پہلے الحلق، جہاں سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں. اس کے بعد الشفتان، جہاں سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ہے اللسان والاسنان، یعنی زبان اور دانتوں کے مختلف حصے، جن کو ہم حروف الوسطی بھی کہتے ہیں. اس سے میجارٹی آف دا حروف 18 سے لے کے 20 تک حروف ادا ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. اور آج کا جو لیکچر ہے اسی کے دوران ارد گرد گھومے گا، کیونکہ لیکچر نمبر 3 میں بھی ہم نے اللسان والاسنان کے بارے میں بات کی تھی. کچھ ایسے حروف ادا کیے تھے جو ہمارے زبان سے ادا ہوتے ہیں، زبان کے مختلف حصے مختلف حصوں سے ملانے سے ادا ہوتے ہیں. یا دانتوں کی قسمیں ہم نے جانی تھی، اور کون سا زبان کا حصہ کس دانت سے ملتا ہے، اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. اسی طرح الجوف یعنی منہ کا خالی حصہ، اور الخیشوم، یہ 5واں امپورٹنٹ مخرج ہے جو ناک کا بانسا کہلاتا ہے. اس کے بارے میں بھی ہم آنے والے دروس میں جانیں گے. تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ کنٹینیو ہوگا حروف الوسطی کے بارے میں. اور حروف الوسطی کے بارے میں آپ جانیے ایسے حروف جو ہمارے دانت اور ہمارے زبان کے مختلف حصے ملانے سے ادا ہوتے ہیں. انہی حروف الوسطی میں ہم نے سب سے پہلے قاف کو ادا کیا، اس کے بعد کاف کو ادا کیا، اس کے بعد جیم، شین اور یا کو ادا کیا، اور اس کے بعد داد کو ادا کیا. اب اس کے بعد جو حرف ہے وہ ہے لام. لام لام کا مخرج کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، لام کا مخرج یہ ہے کہ زبان کا جو ہمارا کنارہ ہے، یعنی نو کے لسان، زبان کی جو سب سے سامنے والی گولائی ہے، اس کو ہم ملائیں گے ثنایا سے لے کر زواحق، یعنی اوپر کے جو دانت ہے، ثنایا علیا سے لے کر زواحق تک جو ہمارے دانت آتے ہیں، جہاں پر جو آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو ہمارا زبان، یہ جو ہماری زبان ہے، اس کا جو یہ کروٹ یعنی ایک نوک ہے، کرو ہے، اس کرو کو ہم اوپر والا جو ہمارے پاس جبڑا ہے اس میں سے جو ثنایا یعنی آگے والے دانت، اور ثنایا کے بعد جو ہمارے پاس انیاب، انیاب کے بعد جو دواحق ہے، یہاں تک دونوں طرف سے ہمارے زبان کی کرو یعنی زبان کی نوک دونوں طرف سے اوپر کی جانب اٹھے گی، اس کے جبڑے سے ملے گی، یعنی دانتوں کا جہاں پر اینڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں مسوڑے، یا ثنایا سے لے کے زواحق تک جو ہمارے جڑ ہے، وہاں تک ہمارے یعنی زبان کی گولائی یا نوک کی لسان، یا جس کو ہم زبان کی نوک بھی کہتے ہیں، اس کو اوپر تک ملائیں گے. جیسے پڑھیں گے لام. لام، اب دیکھیں میری زبان جو ہے اوپر کی طرف اٹھ رہی ہے، اور میں اس کو اٹھا رہا ہوں، ملا رہا ہوں ثنایا سے لے کر، یعنی اوپر والے جو بڑے 2 دانت ہے ان سے لے کر دونوں طرف
अनियाब को टच करके और जो उसके साथ ज़वाहिक है दोनों तरफ ऊपर की तरफ वहां तक ले रहा हूं। यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा इस पिक्चर में भी, और यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि लाम को कैसे अदा करेंगे। ये दोनों तरफ से अदा होता है क्योंकि दोनों तरफ से जो जुबान की हमारी गोलाई है, इब्तिदान यानी नोक की लिसान जो जुबान की नोक है, गोलाई के साथ इसको हम ऊपर उठाएंगे। सनाया से लेकर अनियाब से लेकर ज़वाहिक तक, ये जो आप येलो एरिया देख रहे हैं यहाँ तक। तो कैसे पढ़ेंगे? लाम लाम अच्छी तरह से जानने के लिए अल अल, और आप देख रहे हैं जब भी हम पढ़ते हैं अलहम्दु, अल यानी ऊपर की तरफ आप जुबान को उठाइए और जो जुबान की गोलाई है उसको ऊपर के धातु के साथ, सनाया के साथ, अनियाब के साथ और ज़वाहिक दोनों तरफ से मिलाइए। आराम से अदा होता है अल अलहम्दु। अंग्रेजी में कहेंगे इट इज प्रोनाउंस फ्रॉम द एज ऑफ द टंग। एज ऑफ द टंग मैंने जुबान की नोक, एंड द पार्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द टीथ टुवर्ड्स द पैलेट। जो हमारे पास ऊपर के दांत है उन्हीं का जो अंदरूनी हिस्सा है यानी मसूड़े है उनके साथ ये मिलता है। तो लाम कम्स आउट व्हेन द फ्रंट ऑफ द टीथ टच द गम ऑफ टॉप फ्रंट टीथ फ्रॉम दवाहिक टू सनाया। यानी दवाहिक से लेकर तनाया तक आपके आपके जो आपकी जो जुबान की नोक है वो ऊपर की तरफ मसूड़ों के साथ मिल जाएगी। मुफरदात में मिसाल देंगे। मफ्तू में लाम जबर ला, ला आप देखिए मैं कैसे अदा कर रहा हूं थोड़ा एग्जैजरेट करके ताकि आपको करीब समझ में आ जाए। ला ला, लाम मकसूर यानी लाम जेर ली, और लाम पे जब पेश होगा लाम मदमूम या लाम पेश के साथ लू, ला ली लू। उसके बाद अल, क्योंकि असल में मखरज को समझने के लिए उस हर्फ को हम साकिन बनाते हैं। जैसे अल, अब देखिए आखिर में जुबान ऊपर के दांतों के साथ ज़वाहिक तक मिली रुकी तो हमें पता चला कि हमने लाम को सही अदा किया। अल इल उल, और मुरक्कबात में फ़अल फ़अल ज़ालिका ली ज़ालिका। इसी तरह यफ़अलु, आइन को भी याद रखिएगा, या आइन का अपना मखरज है, या को भी हमने अदा पढ़ा। अब जो हरूफ हमने अभी तक अदा किए हैं उनको भी आप मशक के साथ में याद रखिएगा। यफ़अलु, हालांकि इस वक्त हम लाम को पढ़ रहे हैं मगर आपको पता है हमने हरूफुल हलकी को पढ़ा, हमने दाद को पढ़ा, हमने जीम शीन या को पढ़ा, हमने कॉफ को पढ़ा, कैफ को पढ़ा। अब इनकी भी मशक साथ साथ में होनी चाहिए। जअलना, जअल जअलना। इसी तरह इल्मुन, इल्मुन। इसी तरह कुलना, कॉफ की मिसाल भी होगी, मशक भी होगी। कुलना, कुल, लाम को देखिए कैसे मिला रहा है, कुलना कुलना। ठीक है, तो इसकी मशक लाम, ये हमारे पास मखरज नंबर 8 है। लाम के बाद हमारे पास एक और हर्फ है जो हरूफुल वसती कहलाता है, वो है नून। अब नून को अदा करना लाम की तरह ही बहुत आसान है। नून को कैसे अदा किया जाता है कि जुबान की जो नोक है इन्हें राउंड, जो जुबान का इब्तिदाई हिस्सा गोलाई है, इसको फिर से आप ऊपर की तरफ उठाइए। अब इसको सिर्फ आपको सनाया के साथ, जो सनाया उलिया है ऊपर के बड़े दो दांत, उसके साथ में जो एक एक दांत दोनों तरफ से मिला हुआ है जिसको हम अनियाब कहते हैं, बस इस तक मिलाना है, इसके मसूड़ों तक मिलाना है, इसके गम्स तक मिलाना है। तो मखरज हो गया जुबान की नोक, जबकि मिले अनियाब की जड़ तक, अनियाब यहां तक हो गया, सना से लेके अनियाब, यहाँ के जड़ तक, मसूड़ों तक, जहां से दांत हमारे गम्स के साथ मिले हुए हैं। अन, देखिए बिल्कुल आसान है। नून, लाम थोड़ा सा और जुबान और एक दांत के साथ दवाहिक के साथ मिलेगी, जबकि नून उससे पहले तक ही मिलेगी, अनियाब तक ही, सनाया और अनियाब। अन, वो अल। अब देखिए लाम जब पढ़ेंगे तो हमारा सनाया, हमारा अनियाब और हमारा दवाहिक तीनों मिलेंगे, जबकि नून पढ़ेंगे हमारा सनाया ऊपर वाला और अनियाब तक मिलेगा। अन, न, बिल्कुल आसान।
So it is pronounced from the edge of the tongue. Edge of the tongue means हमारा जो जुबान की गोलाई है, and the part of the roots of the teeth towards the palate. जो ऊपर वाले हमारे दांत है, उनका जो जबड़ा है, उनके सनाया और उनके अनियाब के साथ. So noon comes out. नून कैसे अदा होता है? When the edge of the tongue touches the gums of the top teeth from अनियाब to सनाया. इन्हें नून अदा होता है जब जबान की जो गोलाई है, इसको हम ऊपर की तरफ उठाते हैं और हमारे जो मोटे दांत है सामने वाले तनाया, उसके साथ दोनों साइड से एक एक दांत जो अनियाब कहलाता है, वहां तक के जड़ तक मिल जाता है, तो हमारे पास नून अदा होता है. याद रखिएगा, नून को पढ़ते वक्त थोड़ी सी आवाज नाक में चली जाती है, क्योंकि ये नून की एक इंटरनल सिफ्त है जिसको हम गुन्ना भी कहते हैं. सब ज्यादातर जब इस पे तशदीद होती है तो ये वाज़ेह होती है. अगर तशदीद ना भी हो, सुकून भी हो, या वैसे ही जबर जेर पेश हो, तब तक भी नून की थोड़ी सी आवाज नाक के साथ मिलती है. जब नज़ला जुकाम होता है तो अक्सर आप देखेंगे नून की जो भी हमारे पास हरूफ होते हैं या अल्फाज होते हैं नून के साथ, उनको अदा करना बड़ा टफ हो जाता है. ठीक है, नून यानी इसका मखरज तो हमने जान लिया कि जुबान की गोलाई या जुबान का ये जो किनारा है, इसको ऊपर की तरफ उठाइए और सनाया से लेके अनियाब तक के जड़ के साथ मिलाइए. लाम उससे थोड़ा आगे, अनियाब के बाद दवाहिक, जबकि नून सिर्फ अनियाब तक मिलाना है और पढ़ना है ना. ठीक है, और थोड़ी सी आवाज नाक के बांसे में चली जाए. आप मुफरदात में मिसाल देंगे तो पढ़ेंगे ना, नून जबर ना, नून जेर नी, नून पेश नू. बहुत आसान अदा करना, इसमें कोई यानी कोई इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही अदा हो रहा है. अन, इन, उन. मुरक्कबात में माना, हनीफुन, नु, मीनू. हमजा पे जब भी आप देखेंगे सुकून तो झटके का मतलब आवाज को रोकना है. इसको मैंने पहले भी अर्ज किया था. नु, मीनू. अंतुम, अंतुम नहीं, अंतुम. ये मैंने क्यों किया, इसको मैं सिर्फ मैं आपको बताऊंगा. मिनकुम, तुम. ये तीनों चीजें जो मैंने की है, इसको मैं थोड़ा आगे बताऊंगा. अभी आप सिर्फ अगर आप तुम भी पढ़ेंगे, मिनकुम भी पढ़ेंगे, तुम भी पढ़ेंगे इस वक्त, तो ये काफी होगा आपके लिए. यानी मखरज आपने नून का समझ लिया. अब उसके बाद यानी हमारे पास इससे पहले लाम था, नून था, इसके बाद रॉ है. रॉ देखिए बहुत रॉ आसान से अदा होता है, और रॉ का जो मखरज है ये बिल्कुल आसान है कि आपका जो जबान की गोलाई है, इसको फिर से ऊपर की तरफ उठाना है, और सनाए के बाद जो हमारे पास बिल्कुल साथ में दांत है, सनाए के बिल्कुल साथ में, जिसको हम रुबाई कहते हैं. रुबाई, क्योंकि सनाया के बाद हमारे पास रुबाई, उसके बाद अनियाब, अनियाब के बाद दवाहिक. तो आपने जब जुबान की गोलाई दवाहिक तक उठाई तो हमारे पास लाम अदा हो गया. आपने जुबान की जो नोक है उसको आपने अनियाब तक उठाया, हमारे पास नून अदा हो गया. अनियाब से पहले इन्हें सुनाए के बाद एक एक दांत जो हमारे पास बिल्कुल है, इसको कहते हैं रुबाई. रुबाई. तो रा की आवाज बिल्कुल आसान है, नून की तरह. जबान की गोलाई को ऊपर की तरफ उठाइए, मगर रुबाई तक. रुबाई, रुबाइयात जिसको हम कहते हैं, हमारे जो सनाया के फौरन बाद एक एक दांत है, इसको हम रुबाई कहते हैं. उसके साथ मिलाइए तो आपके पास रॉ अदा होता है. रॉ बिल्कुल आसान रॉ. और रॉ में नेचुरली एक यानी लकनत है. लकनत मतलब इसमें जो आवाज, जैसे हम ट्रैक्टर पढ़ते हैं ना, ट्रैक्टर, ट्रा ट्रा, थोड़ा सा वो जो तकरार है, तकरीर जिसको कहते हैं, वो रॉ के साथ मिला हुआ है. रॉ को हम सीधे नहीं पढ़ते, इसको पढ़े रॉ. रॉ थोड़ा सा मैं एग्जेजुरेट कर रहा हूं दिखाने के लिए, ताकि आपको पता चले कैसे अदा होता है. रॉ जो होता है ना ट्रैक्टर की तरह, ट्रैक्टर आप अदा कीजिए, जो उसमें जो आवाज आती है लकनत की तरह, रॉ में ये सिफत पाई जाती है. तो कैसे हम इसको अदा करेंगे? रॉ उस वक्त पढ़ेंगे जब जुबान की जो गोलाई है, जिसको हम नोक के लिसान कहते हैं, इसको आप ऊपर की तरफ उठाएंगे, और जो आपके फ्रंट टीथ है यानी सनाया, उसके साथ जो एक एक दांत रुबाई है, उसके साथ ही अदा होता है. बिल्कुल आसान से अगर आप याद रखें, क्योंकि सनाए के बाद रुबाई, अगर आपकी नोक सनाए के साथ रुबाई के साथ मिलेगा तो रॉ अदा होता है.
सनाया के साथ रुबाई के साथ अनियाब तक मिलेगा तो नून अदा होता है, नून से नाब, नाब से अनियाब, इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। और अगर सनाया के बाद रुबाई फिर अनियाब फिर दवाहिक तक चला जाता है तो लाम अदा होता है। तो ये तीनों हरूफ तकरीबन तकरीबन सेम अदा होते हैं, डिपेंड करता है कि जुबान की गोलाई यानी ऊपर के कितने दांतों के साथ मिल जाती है। रॉ सबसे करीब, इसका मखरज आपने जाना जुबान की गोलाई या जुबान का किनारा जबकि मिले ऊपर के हमारे जो सनाया से लेके रुबाई तक के जड़ों तक। यहाँ आप देख रहे हैं मुंह के जो ऊपर वाले दांत हैं उसके साथ साथ में एक दांत तक टच होता है उसके जड़ के साथ हमारी जुबान की गोलाई या नोकी लिसान, ऐसे हमारे पास रॉ अदा होता है। मुफरदात की मिसाल देंगे तो पढ़ेंगे रॉ, रॉ ज़बर रा, रॉ ज़ेर री, रॉ पेश रू, रू। अब देखिए थोड़ी सी मेरी आवाज में जो लकनत आती है वो उसकी सिफ्त है, ये हम पढ़ेंगे जब हम सिफात पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हमारी कोशिश ये है कि रॉ का मखरज क्या है, मैंने कैसे अदा होता है। मजीद जानने के लिए कि रॉ को कैसे पढ़ेंगे, रॉ को हम साकिन बनाएंगे तो पढ़ेंगे अर, अर। अब देखिए थोड़ी सी आवाज में मेरी जुबान के अंदर थोड़ा सा वाइब्रेशन हो रहा है। अर, अर रहमान, है ना, अर, इर, उर। रॉ के पढ़ने के वक्त थोड़ी सी वाइब्रेशन होती है, ये रॉ की सिफ्त है और सिफ्त को आप मखरज से अलग नहीं कर सकते। मुरक्कबात में देखेंगे तो पढ़ेंगे अमारा, अमारा, फरिहा, कारुमा, कारुमा रू। इसी तरह यरजुकु, यर, यरजुकु। इसी तरह उमिरतु, उमिर, मिर। आप देखिए मिर, थोड़ी सी आवाज में लखनत, उमिरतु, नुरसिला, नूर, नुरसिला। तो इस तरह हमारे पास रॉ का भी मखरज आ गया। उसके बाद हमारे पास मखरज नंबर 11 जो है वो 3 हरूफ का एक साथ है। कौन कौन सा हरफ है वो? ता, दाल, तो। याद रखिएगा, ता, दाल, तो। तो को जब हम पढ़ेंगे तो होंठों को गोल करेंगे, अदरवाइज ये ता की तरह लगेगा। इनका मखरज क्या है? बहुत आसान है। इनका मखरज ये है कि जुबान की जो आपकी नोक है, यानी नोक की लिसान, जुबान का जो दायरा है, गोल दायरा है, सामने वाला नोक जो है, इसको आपको जो सनाया उलिया है, जो आगे वाले दो दांत, बस आगे वाले दो दांत के जड़ तक मिलाना है। ता, दाल, तो। देखिए आप सीक्वेंस में चलेंगे तो बहुत आसानी होगी। जब हमने लाम को पढ़ा, हमने सनाया उलिया, उसके साथ रुबाई, उसके साथ अनिया, उसके साथ दवाहिक तक हमने जबान की गोलाई को उठाया। उसके बाद हमने जाना नून को, तो हमने एक दांत कम करके दवाहिक को कम करके हम यानी सनाया उलिया, इसके बाद रुबाई और अनियाब तक ले आए नून को। उसके बाद जब हमने रॉ पढ़ा तो हमने सनाया उलिया और उसके साथ में जो बगल में एक एक दांत है रुबाई वहां तक किया। अब उसके बाद जब हम 3 हरूफ पे आए मखरज नंबर 11 में, ता, दाल और तो, बहुत आसान मखरज याद रखना है कि जुबान की गोलाई या नो की लिसान जबकि मिले सनाया उलिया के जड़ से। जड़ का मतलब जहां पर हमारे जो ये जो सामने वाले दांत जुड़े हुए हैं ना मसूड़ों के साथ, गम्स के साथ, वहां तक जब आप उसको उठाएंगे तो मिलाएंगे तो हमारे पास ता, दाल, औ अदा होता है। औ। अब देखिए तो को पढ़ते वक्त मैं मोटी आवाज निकालता हूं और मैं होठों को गोल करता हूं। इससे हमारे पास ता और तो में फर्क आ जाता है। ता और तो जब आप इसके साथ मिलाएंगे ना, ऊपर आप खुद भी मिलाइए तो आप खुद जानेंगे कि ये कैसे सिंपल के साथ अदा हो रहा है। जब आपको मखरज याद है, उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ब खुद अदा हो जाएगा। तो दाल, ता और तो, इट कम्स आउट व्हेन द टिप ऑफ द टंग, इन जुबान की नोक, इट टच ऑन द रूफ ऑफ द टू टॉप फ्रंट टीथ। जो सनाए उलिया जो है, जिसको हम टॉप फ्रंट टीथ कहते हैं, उसके रूफ, रूफ मतलब जड़ के साथ हम जुबान की नोक को मिलाते हैं। ता, दाल, तो। मिसालें देंगे इनकी। सबसे पहले मुफरदात की, ता, ती, तू, बहुत आसानी से अदा होता है, कोई ज्यादा मशक की जरूरत नहीं। अत, इत, उत। याद रखिएगा इस आवाज को आपको अपने मखरज में रोकना है।
अक्सर गलती क्या होती है, हम पढ़ते हैं अत, इत, वो गलत है, वो ता के साथ नहीं होता, ता के साथ आवाज को रोकना है। अत, इत, उत, दाल, दा, दी, दू, आद। अब याद रखिएगा, बरक्स ता के दाल की आवाज को हम वापस निकालते हैं, उसकी आवाज को रिबाउंड करते हैं। इस सिफ्त को हम कलकला कहते हैं। इससे पहले भी हमने कौफ में सिफ्त जानी थी कि कौफ में होता है, जीम में होता है, ठीक है। अब आज आपने तीसरा हर्फ भी जाना, वो है दाल, आद, है ना, आद, अहद। जब हम पढ़ते हैं सूरतुल इखलास, हम पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, अहद, अहद नहीं, अहद। दाल की आवाज को वापस लाना होता है। तफसील के साथ इंशाल्लाह इस पढ़ेंगे इसको, अभी आप सिर्फ मखरज पे गौर कीजिए। अद, ईद, उद। अब तो की मिसाल, तो, तुई, तू। याद रखिएगा, ता और तो में आपको फर्क करना है। वो फर्क क्या है, तो को जब आप पढ़ेंगे तो होंठों को गोल करेंगे, आवाज मोटी निकालेंगे। आ तो, अच्छा, तो की आवाज भी वापस आती है, ये बरखलाफ ता के, यानी ता की आवाज तो रुक जाती है मगर तो की आवाज भी वापस आती है। अभी आपने चार हुरूफ जाने जिनकी आवाज वापस आती है। एक है बा, खैर उसको अभी हमने पढ़ा नहीं, बा को छोड़ के हमने जीम पढ़ा, हमने कौफ पढ़ा, हमने दाल पढ़ा और हमने तो पढ़ा। इन चार हुरूफ प्लस जो हम बा पढ़ेंगे बाद में, जिसको उर्दू में बे पढ़ते हैं, इन पांच हुरूफ की आवाज वापस आती है, मखरज से रिबाउंड होती है, जिसको हम कलकला कहते हैं। और ये सिर्फ तब हो जाती है जब इन हुरूफ पर जज्म आ जाए, सुकून आ जाए, जब ये साकिन हो। जैसे अत, इत, उत। यहां नहीं पढ़ेंगे अत, इत, उत। हम अक्सर बरसगीर में रहने वाले गलती करते हैं, जहां कलकला करना होता है, रिबाउंड करना होता है, वहां नहीं करते, और जहां नहीं करना होता है वहां करते हैं। तो इसका ख्याल रखना है। सिर्फ पांच हरूफ पे कलकला होता है, पांच हरूफ में से बा अभी हमने नहीं पढ़ा। उसके अलावा हमारे पास कौफ है जब वो साकिन हो जाए, जीम है जब वो साकिन हो जाए, दाल है जब वो साकिन हो जाए, और तो है जब वो साकिन हो जाए। इसके बाद हमारे पास मुरक्कबात की मिसाल कतबा, कुतिबा, यक्तुबु, यतलू। अब देखिए, इसको आवाज को मैं ठहरा रहा हूं, यतलू, फित नातुन, ऐसा नहीं पढ़ रहा हूं फित नातुन, क्योंकि ता की आवाज को वापस नहीं लाते। उतलू, दाल, आदमु, दिमाउन, अलहम्दु, कद। अब देखिए, दाल की आवाज को वापस ले आए, कद के बजाय कद, इदफा, युदरिकु। तो की मिसाल बसत, बातिलुन, यतूफु, मत। तो की आवाज भी वापस लाते हैं, मतलूबुन, मतलूबुन, इतआमुन, मुतमइन्ना, मुतमइन्ना। ठीक है। इसके बाद और तीन हरूफ है हमारे मुंह में जो अदा होते हैं हरूफुल वसती में, वो है दाल, ता और वा। ये तीन हरूफ भी एक साथ अदा होते हैं, बहुत आसान इनको पढ़ना है। वो कैसे पढ़ते हैं, जुबान की जो नोक हमारी है, इसको हम सनाया उलिया जो है ना, ऊपर हमारे जो दो दांत है, उनके किनारे के साथ, ये जो तेज हिस्सा है ना जिसको मैं टच कर रहा हूं, इसके साथ मिलाएंगे। जब इसके साथ मिलाएंगे ये खुद ब खुद नरम हो जाएंगे। जैसे ता, ता, सा नहीं, ता, ता, लाल, वा। अब दाल और वा को फर्क कीजिए, वा को जब हम पढ़ेंगे तो होंठों को गोल करेंगे, सा, दाल, वा। ये तब अदा होते हैं जब जुबान की नोक को हम ऊपर उठाते हैं, और जो सनाया उलिया यानी ऊपर जो हमारे बड़े दांत हैं, उनके किनारे के साथ मिलाते हैं। ठीक है, उनके किनारे के साथ मिलाते हैं। याद रखिएगा, इनको हम कहते हैं बहुत ही नरम हरूफ, ता, दाल और वा। मिसाल इनकी देंगे मुफरदात में, जाल जबर जा, री, रु। अब देखिए, जा जो है वो तेज पढ़ा जाता है, जाल नरम मजा होता है, रा, री, रु, अल, इल, उल। अब देखिए, जब आप मखरज के साथ पढ़ेंगे खुद ब खुद नरम हो जाएगा, सा, सी, सु।
आह बहुत नरम, आह, इर, उह, सीन की तरह नहीं, बहुत आसान। इसी तरह वा, वी, वु, आव, इव, उव, होंठों को गोल कीजिए। मुरक्कबात की मिसाल ज़हबा, उज़िना, यअख़ुज़ु, यज़हबु, यल, देखिए यल, यज नहीं, यल, क्योंकि जाल है, जा को तेज पढ़ते हैं। इज़हब, मुज़निबीना, ता की मिसाल समरातुन, आसिमीना, युगासु, असमरा, मिथलुन, वुस्क़ा, ज़ा की मिसाल ज़हरा, ज़ा को नरम भी पढ़िए और थोड़ा होंठों को गोल भी कीजिए। ज़हरा, ज़ाल को आप अपोजिट करने के लिए ज़ा को हम मोटा पढ़ेंगे। ज़िलालुन, यंज़ुरूना, यज़लिमु, हाफ़िज़ु, युज़लमूना। ये ज़ा की मिसाल, थोड़ा सा इसमें मेहनत करें। इन 3 हरूफ पे थोड़ी मेहनत करनी है, क्योंकि ये 3 हरूफ नरम होते हैं। अदा जबान की नोक जब ऊपर वाले 2 दांत सनाए उलिया के किनारे के साथ मिलाएंगे, खुद ब खुद ये नरम हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास आखिर मखरज जो हमारे यानी दरमियानी हरूफ जो है दांतों और जुबान के जरिए से अदा होते हैं हरूफ वस्ती में, वो है जा, सीन, सौद। बड़े तेज हरूफ अदा होते हैं। इनको कैसे अदा करते हैं? जब जुबान की नोक जो हमारी है, नोक की लिसान, इसको हम नीचे वाला, जैसे सनाया सुफला, देखिए सनाया हमारे पास 4 है, उलिया ऊपर, सुफला नीचे। जुबान की नोक जब सनाया सुफला के किनारे के साथ मिलाएंगे, नीचे वाले दांतों के किनारे के साथ मिलाएंगे, तो जा, सीन और सौद अदा होता है। सीन और सौद को फर्क करने के लिए सौद को होंठों को गोल कीजिए, मोटा कीजिए, बहुत आसान। यानी जुबान की नोक आपको नीचे के दांतों के साथ मिलाना है और दांतों के बीच में से आवाज सिटी की तरह निकालनी पड़ेगी। कैसे पढ़ेंगे? जा, सीन, सौद। ये अपोजिट है राल के, ता के, जो हमने उससे पहले पढ़े ये वाले हरूफ, यानी राल, ता और वा बहुत नरम हरूफ। इसके अपोजिट में जा, सीन और सौद, क्योंकि जबान की जो नोक वो नीचे वाले दांतों को टच करती है। मिसाल इनकी मुफरदात में, मिसाल जा, जी, जू, तेज पढ़िए क्योंकि जाल के बरखलाफ है ये। अज, इज, उज। इसके बाद सा, सी, सु, अस, इस, उस। सीन की आवाज बहुत तेज होती है, इसको सफीर भी कहते हैं, चुड़िया की आवाज, जैसे चुड़िया तेज आवाज निकालती है। इसको हम सिफ्त में इंशाल्लाह देखेंगे। स्वाद की आवाज सा, सी, सु, सीन की तरह, मगर होंठों को गोल कीजिए। अस, इस, उस। मुरक्कबात में वज़ना, जा की मिसाल तज़िरु, ज़ुबुरुन, वज़दादु, रिज़्क़ुन, जुज़उन। सीन की मिसाल कसबा, यक्सिबु, सुइला, अस्लमा, इसहाक़, मुस्तक़ीमुन। सौद की मिसाल सदक़, सिरातुन, सुदूरुन, अस्दक़ु, मिस्बाहुन और मुस्लिहून। ठीक है, इसको आप मशक कीजिएगा, और अगर आप मखारिज के साथ अदा करते हैं तो आराम से खुद ब खुद ये अदा हो जाए। अब आज के जो हमने हरूफ अदा किए हैं उसके साथ पुराने हरूफ भी हमने अदा किए हैं, उनको जानने के लिए मैं आपके सामने सूरतुल कुरैश पढ़ूंगा। उसमें बहुत सारे हरूफ आएंगे और आप मशक करेंगे, आप मेरे साथ इसको फिर दोहराएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
एक और सूरत पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदु'उल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिलमुसल्लीन الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم। मुनीर साहब आप सूरतुल कुरैश पढ़ें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم माशाअल्लाह। لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ताई तशता नहीं तशताई। إيلافهم رحلة तश الشتاء तशताई إيلافهم رحلة الشتاء तो तो नहीं ताई। खैर अभी إلى मुनीर साहब मुझे लग रहा إلى हमारा हमारा जो जूम का टाइम है ना वो ख़त्म हुआ है। आप इस सूरत को पढ़िएगा, इंशाल्लाह अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम ज़्यादातर तवज्जो आपके पढ़ने पे देंगे और थोड़ा सा हम कवायद कम जानेंगे, ठीक है, क्योंकि वक्त हमारा ख़त्म हुआ जाता है। इंशाल्लाह तांत्रे साहब आप भी कोशिश कीजिएगा इन दोनों सूरतों को पढ़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व